Communication system means sending information from one place to the other place. हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है किसी एक लोकेशन पे है, जैसे यहाँ से मैं बोल रहा हूँ और बॉम्बे में कोई मुझे सुन रहा है. Then there are two things. One is I am sending an information. Other, this information is received at a far away place. Now the system which helps me to send this information to that place is known as communication system. So communication system is the one which help us to send information from one place to the other place, and the other place may be a far away place. So we have information. This is information at one location, and this is to be sent to another far away location. Here we must receive this information. Okay. Now this information may be a audio information or a video information. ये साउंड भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है. आजकल दोनों का मीनिंग हम जानते हैं, और आजकल एक तीसरी चीज भी आ गई है, दैट इज डाटा. सो इट मे बी ऑडियो, इट मे बी वीडियो, और इट मे बी डाटा. सो इंफॉर्मेशन, वी हैव दिस थ्री टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन: audio, video and data. Okay. Now this information is sent. For the sending we use the word transmitted. To transmit this information, first we convert it into electrical voltage signals. Signals हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है. What is a signal? Variation of voltage or variation of current in a given time period. That forms a signal. So this information is converted into signals. Signals. What is a signal? Okay, आप छोटा छोटा नोट भी करते जाइए. What is an information? Information is in the form of audio, video or data. Okay. Now we should understand this information. We call it intelligent information. That means which has some meaning. ठीक है? If it has some meaning, then it is information. This information we convert into electrical signals. These signals, the nature is electrical. Okay. Now these signals we have studied. There may be two types of signals. From here to here, information to signals. What is the signal? Variation of current or voltage for a given time, that is signal. And there are two types of signals. This we have studied. The two types are analog and digital. Analog signal is the one which has continuous variation of voltage, and digital is the one which is constant. That means which can be converted into the form of digits. Okay, these are signals. We will come back to it again once to have some detailed study. Then these signals are sent to a system which we call communication or transmitter system. Okay. Here we have a transmitter. This transmitter is processing these signals, make them very strong, so strong that they can go to a longer distance. Okay, that is the transmitter, and this transmitter pass that signal to go for a longer distance. Okay. Now we need a medium. We need a medium in which
दिस मैसेज विल गो। फिर से देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर मैंने यहां से बॉम्बे अपने घर में जाना है तो बॉम्बे इतना दूर का डिस्टेंस है दैट आई कैन नॉट गो वॉकिंग। यहां से मैं अपने घर से निकलूंगा तो मैं वॉक करके निकलूंगा चलते हुए, वहां पर अपने घर में एंटर करूंगा, उस समय भी मैं वॉक कर रहा होऊंगा, पर पूरा डिस्टेंस मैं वॉक करके नहीं जा सकता बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच एनर्जी। ओके, फिजिक्स के टर्म। सो व्हाट डू? आई गो टू रेलवे स्टेशन। I go to railway station. I am an information. Go to railway station. Then I buy a ticket. On the ticket it is written from my place to Bombay. Now I have become a signal. Now the train comes. I board on the train. बोर्ड पर मैं ट्रेन पे बैठ गया और वो ट्रेन, ये यहाँ का स्टेशन, रेलवे का सिस्टम, ट्रेन, ये सब मिलाकर एक ट्रांसमीटर बन गया। उन्होंने मुझे इतनी एनर्जी दी कि मुझे बैठाकर वो पूरा ले गए कहां तक? बॉम्बे तक। बॉम्बे का स्टेशन मेरे को फैसिलिटी देता है कि वहां पर मैं उतर जाऊं और जाकर अपना रास्ता पकड़ लूं। दैट इज ए रिसीवर। अच्छा, ट्रांसमीटर यहां का स्टेशन है, रिसीवर वहां का स्टेशन है। ट्रांसमीटर मुझे क्या फैसिलिटी देता है? वो मुझे ट्रेन पर बैठाता है। मैं अपने घर पे ट्रेन में नहीं बैठ सकता क्योंकि वहां पर एक अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट मुझे ट्रेन पर बैठाता है। उसके बाद वो ट्रेन रेल के रास्ते से जाती है। दैट रेल इज ए चैनल। तो ट्रांसमीटर ने सिग्नल को ताकत दी। कैसे ताकत दी? डब्बे में बिठा दिया। उसके बाद उसने रेलवे लाइन पर चलाया। वो रेल लाइन क्या है? चैनल। राइट? ओके, उस चैनल पर वो मुझे ट्रांसमीटर में यहां से डाल दिया। अब वो चैनल पर चलते 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 इतनी एनर्जी थी कि वो कहां पहुंच गए हम? बॉम्बे। लेकिन वो ट्रेन मेरे घर तो नहीं जाएगी। तो बॉम्बे में फिर मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो ट्रेन से अलग कर दे, ट्रेन से उतार दे। वो वहां का रेलवे स्टेशन है, दैट इज रिसीवर। तो उसने मुझे वहां पर रिसीव किया। रिसीव करके मुझे ट्रांसमीटर वाला जो सिस्टम था कि ट्रेन पर मैं बैठा हुआ था, उससे मुझे अलग कर दिया। ट्रेन अलग, मैं अलग, और स्टेशन से मैं बाहर निकल गया। ये क्या हुआ? रिसीवर से मैं बाहर निकल गया। उसके बाद वहां पर टैक्सी में बैठ के मैं घर के सामने गया और वहां से जाके पैदल अपने घर में एंटर कर गया। दैट इज, कहां पहुंच गए हम? इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमने स्टेप क्या क्या बनाए? इसमें हमने स्टेप ये बनाए कि यहां से ट्रांसमीटर ने मुझे किस पर चढ़ा दिया? चैनल। इस चैनल ने मुझे कहां भेज दिया? रिसीवर। और रिसीवर ने मुझे फिर दोबारा क्या बना दिया? इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसी स्टोरी को हम अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। कैसे अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं? कि हम रेलवे स्टेशन जाने की बजाय एयरपोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो एयरपोर्ट हमें क्या करेगा? एक दूसरे टाइप का सिग्नल बना देगा। देयर मे बी वैरायटी इन द सिग्नल। अब वहां पर ट्रांसमीटर कौन है? ट्रांसमीटर एयरपोर्ट है, एरोप्लेन है, वो ट्रांसमीटर है। अच्छा, वहां पर चैनल कौन है? क्या रेलवे लाइन चैनल है? नहीं, वहां पर एयर चैनल। ठीक है, और वहां पर जो रिसीवर है वो दूसरे तरीके से काम करता है। रेलवे का रिसीवर दूसरे तरीके से काम करता है। तो इस तरह से सिस्टम वही है, जो हमारे जाने का सिस्टम है वैसे ही इंफॉर्मेशन के जाने का सिस्टम है, और उसके हमने टुकड़ों टुकड़ों में नोमेनक्लेचर ऐसे कर दिए। राइट? तो पहला स्टेप जो हमारे पास रॉ इंफॉर्मेशन है वो हमको लास्ट में दूसरी जगह पहुंचानी है। तो फर्स्ट कन्वर्शन किसमें होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस कौन करेगा? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर प्रोसेस करके किस पे चढ़ा देगा? चैनल पे। चैनल उसको लॉन्ग डिस्टेंस ले जाएगा। अब ट्रांसमीटर ने हमको एनर्जी दी है, ये लॉन्ग डिस्टेंस जाएगा और डेस्टिनेशन पर इसको कौन मिलेगा? रिसीवर। रिसीवर इसको फिर से प्रोसेस करेगा।
प्रोसेस करेगा मींस ट्रांसमीटर में जिस पावरफुल ट्रेन पे चढ़ाया है उससे वो उसको उतारेगा, ये उतार के फिर से उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा। हाँ, यहाँ पर एक मशीन लगेगी छोटी सी, यहाँ पर भी एक छोटी सी मशीन लगेगी जो इसको किसमें कन्वर्ट करती है, सिग्नल्स में। ये किसमें कन्वर्ट करती है, इंफॉर्मेशन में। ये दोनों गेट है, रेलवे के गेट है। रेलवे के गेट से हम उतरते हैं, एक छोटी सी मशीन रहती है, टिकट मशीन। टिकट हम खरीदेंगे तो हम किसमें कन्वर्ट हो गए, सिग्नल। अब हम जा सकते हैं, और वहां पर जब तक हम टिकट नहीं दिखाएंगे हम हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल के लिए अगर ऑडियो या वीडियो कोई भी सिग्नल हो तो इसके लिए जो उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फिजिक्स में ट्रांसड्यूसर। तो यहां पर क्या लगेगा, ट्रांसड्यूसर। नोट करिए, ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस, transducer is a device which convert variation of any type into voltage variation, अच्छा, एक वेरिएशन ऑफ एनी टाइप का मतलब क्या है, एक्चुअली दिस इज एनी फिजिकल वेरिएशन। फिजिकल वेरिएशन जैसे यहां पर एयर के पार्टिकल अभी एकदम स्ट्रीमलाइन शांत है, मैं बोलता हूं, जब मैं बोलता हूं तो यहां से एक वेव निकलती है और यहां के प्रेशर कम ज्यादा होके वाइब्रेट करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे चलती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे कैसे जाती है, उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं बारी बारी से। सो देयर इज ए चेंज इन द प्रेशर। उस चेंज इन प्रेशर को सामने हम एक माइक्रोफोन रख देते हैं। अब वो चेंज इन प्रेशर को माइक्रोफोन का डायफ्राम हिलेगा, उस माइक्रोफोन के पीछे हमने एक सर्किट लगाया हुआ है। जब ये ऐसा चलता है तो ऐसा चलने से उसका रेसिस्टेंस कम या ज्यादा होता है। अगर ये रेसिस्टेंस कम या ज्यादा होगा हमारे बोलने से तो उसकी इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो कम या ज्यादा होगी। रेसिस्टेंस कम या ज्यादा होने से इसमें हमने एक सेल लगाया हुआ है, तो V हमने लगाया हुआ है, R को कम ज्यादा करेंगे तो इसकी करंट कम या ज्यादा होगी। वो कम या ज्यादा करंट जो है वो हमने यहाँ पर ले ली। अब ये यहाँ पर जो इस तरह से हमको करंट मिलती है या वोल्टेज मिलती है, ये कैसा सिग्नल बन गया, इलेक्ट्रिकल। पहले ये कैसा सिग्नल था, प्रेशर वेरिएशन। जब हम बोल रहे थे तो कैसा था, प्रेशर वेरिएशन। और माइक्रोफोन से निकलने के बाद क्या हो गया, वोल्टेज वेरिएशन। किसने किया, माइक्रोफोन ने। तो माइक्रोफोन क्या बन गया, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर फैमिली है। इसी तरह से ये जो सामने कैमरा लगा है, दिस इज ए ट्रांसड्यूसर, क्योंकि ये यहां से जो लाइट जा रही है उस लाइट को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज ए ट्रांसड्यूसर। तो मेनली दो ट्रांसड्यूसर हम लोग मोस्टली यूज में लाते हैं, वन इज माइक्रोफोन एंड वन इज कैमरा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीजें भी हम ले सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर करता क्या है, कन्वर्ट करता है एक टाइप के वेरिएशंस को दूसरे टाइप के वेरिएशंस में। कोई भी ट्रांसड्यूसर मींस वन टाइप टू अदर टाइप। यहां पर हम लोग पर्टिकुलरली उसमें से कौन सा ले रहे हैं, दैट एनी वेरिएशन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वेरिएशन, दैट इज ए ट्रांसड्यूसर। और वैसे ही ट्रांसड्यूसर हम यहां भी लगाएंगे। यहां पर जब लास्ट में जाके उसका यहां इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस आएंगे तो यहां हम एक स्पीकर लगा देंगे। एक स्पीकर हमने लगाया और इसकी जो करंट है, ये करंट यहां से रिसीवर से हमको मिली, ये करंट ऐसे वेरी होती है। जब ये वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं तो यहां पर ये स्पीकर ऐसे ऐसे चलता है, तो यहां एयर में कैसे वेरिएशंस होंगे, देयर विल बी कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन, और हमको साउंड मिल गया। यहां से भेजा क्या था, साउंड, लास्ट में क्या मिला, साउंड। वो इंफॉर्मेशन हमको मिली। तो
साउंड टू इलेक्ट्रिकल बनाने के लिए हमने क्या लगाया? ट्रांसड्यूसर, और फिर इलेक्ट्रिकल टू साउंड लास्ट में बनाने के लिए ट्रांसड्यूसर। दिस इज ट्रांसड्यूसर। ओके, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम अगली चीज लेते हैं इसमें। सिग्नल तो आप लोग समझ चुके हैं। सिग्नल कितनी तरह के होते हैं? एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग इज ए कंटिन्यूअस सिग्नल्स एंड डिजिटल आर स्टेप वाइज सिग्नल्स। ओके, ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ये इसमें वोल्टेज के सिर्फ दो ही लेवल होंगे, आइदर इट इज 0 लेवल और इट इज 1 लेवल, दैट इज हाई लेवल, and a group of such voltages make a signal like 0 1 1 0 1 1 0. This group makes one wave, we call it box wave, and that is a signal, that is a digital signal. इस डिजिटल सिग्नल को हम लोग कोडिफाई कर देते हैं। कोडिफाई करते हैं ताकि उसमें इंटेलिजेंस आ जाए। इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इंटेलिजेंस मतलब उसमें कुछ मीनिंग आ जाए जो हम दोनों ने आपस में एग्री किया है। कैसे हम दोनों ने आपस में एग्री किया है? जैसे अगर हमारे पास सिग्नल आएगा 0 0 0 0, तो हम मानेंगे कि ये बोला गया है 0। अगर हमारे पास सिग्नल आता है 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हम मानेंगे कि ये क्या बोला गया जा रहा है? 1। और इसी तरह से अगर हमारे पास सिग्नल आता है 0 0 1 0 0 0 1 0, ये क्या होता है? 2। ओके, इसी तरह 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं? 0 0 1 1 0 0 1 1, ये हमें क्या देता है? 3। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं, दैट इज ए डिफरेंट ब्रांच। ओके, लेकिन हम लोग ये समझ सकते हैं दिस इज 0 1 0 0, दिस रिप्रेजेंट्स 4। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा पूरा 1 0 0 0, दिस रिप्रेजेंट्स 8। तो आप देखिए, हमने एक वेव भेजनी है, उस वेव में कितने टाइम पीरियड है? 4, 1 2 3 4। हर 4 टाइम पीरियड के बाद हम देखते हैं वेव कैसी है। हमने देखा कि 4 टाइम पीरियड के बाद वेव ऐसी है, ये। अब इसका मीनिंग बताइए, 0 1 0 0 क्या चीज है ये? 4। यस, इसका मीनिंग क्या है? 4। समझ आया? तो जब ये वाली वेव आएगी तो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा? 4। तो ये हमने सिग्नल को कोडिफाई किया। सिग्नल तो ये है, क्यों? क्योंकि ये वेरिएशन ऑफ वोल्टेज है। ये बेसिकली क्या है? इट इज ए ग्राफ, टाइम एंड वोल्टेज। यहां पे वोल्टेज गई 0, यहां 1, यहां 0, यहां 0, तो ये कितना लिखा हुआ है? 4। उसके बाद हमने ये लिया, फिर से यहां से 0 0 1 0 0 0 1 0 इज 2, दोनों मिला के क्या हो गया? 42। ठीक है? इस तरह से आगे जो भी कोडिफिकेशन किया, अगेन कोडिफिकेशन इज नॉट अवर टॉपिक टुडे। हम सिर्फ एक ये चीज समझ रहे हैं कि 0 और 1 इसके कॉम्बिनेशन से हम कोई भी चीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं आपको। तो 1 2 3 4 इन सब को हम इन्फॉर्म करते हैं इस तरह से बना के। और ये जो कोडिफिकेशन के है, ये वाले जो कोडिफिकेशन है, दीज आर नोन एज बाइनरी कोडिंग। ठीक है? क्योंकि इसमें 2 लेवल होते हैं, 0 लेवल एंड 1 लेवल। सो दिस इज बाइनरी कोडेड सिस्टम, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम। तो अभी आप में से जो लोग आईटी की स्टडी कर रहे हैं उनको ये पूरा मालूम होता होगा। कर रहे हैं कोई? एनीबॉडी? कंप्यूटर साइंस, उसमें ये आता है।
ओके, तो ये बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम है। इसी तरह से हमने एक अमेरिकन सिस्टम बनाया हुआ है, उसका नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCIA सिस्टम। इसमें 7 डिजिट्स होते हैं और इन डिजिट से हम लोग अल्फाबेट्स बनाते हैं ABCDE, राइट। क्योंकि वो ज्यादा होते हैं इसलिए हमारा 4 डिजिट से काम नहीं चलता, तो उससे हम ऐसा कोडिफिकेशन कर लेते हैं कि 01000010 का क्या मतलब है, ठीक है, दैट इज कोडिफिकेशन। ये जो हम सिग्नल की कोडिफिकेशन कर रहे हैं ये किस तरह के सिग्नल्स हैं? तो आंसर है ये किस तरह के सिग्नल्स हैं? डिजिटल, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिर्फ ये 2 लेवल की वोल्टेज होती है, या तो 0 लेवल या 1। ये डिजिटल सिग्नल होते हैं इस तरह से, और इसको हम या तो 0 लेवल पे रखते हैं या वोल्टेज को 1 लेवल पे रखते हैं। और एनालॉग में इट में है any value there is a continuous change, right? ओके, तो ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अगर हमारा सिस्टम एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करके काम करता है, देन वी विल से इट इज ए एनालॉग सिस्टम। अगर हमारा सिस्टम डिजिटल प्रोसेस को लेकर काम करता है, देन वी विल से इट इज ए डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम और एनालॉग सिस्टम में कौन सा सिस्टम ज्यादा क्लियर होता है? डिजिटल ज्यादा क्लियर होता है। उसमें क्लैरिटी ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज आइदर वी हैव यस और वी हैव नो, बीच वाली चीज उसमें नहीं होती है। सो इट इज आइदर 0 सिग्नल और 1 सिग्नल, एंड इट इज वेरी इजी टू बी दैट इज कंप्यूटर। इसको हम लोग कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो सिग्नल है एनालॉग सिग्नल, ये इसको कंप्यूटर से ऑपरेट नहीं कर सकते। हमारे कंप्यूटर इसके लिए डिजाइन है। हमने लॉजिक गेट्स पढ़ा है। लॉजिक गेट्स में हमको कैसी वेव्स चाहिए? बॉक्स वेव चाहिए, जिसके पास 2 ही लेवल होने चाहिए, 0 1 0 1 0 1, लाइक दैट। ओके, तो ये ज्यादा क्लियर होते हैं क्योंकि इसमें क्लियर कट या तो सिग्नल है या सिग्नल नहीं। तो ये आपका एक 1 मार्क क्वेश्चन तैयार होता है, दैट विच सिग्नल इज मोर क्लियर एंड डिस्टर्बेंस फ्री। तो आंसर है डिजिटल सिग्नल इज मोर क्लियर एंड डिस्टर्बेंस फ्री। ओके, द कंप्यूटर्स आर वर्किंग ऑन विच टाइप ऑफ सिग्नल? ऑन डिजिटल सिग्नल। ओके, देन विच आर द इक्विपमेंट्स विच आर वर्किंग ऑन एनालॉग सिग्नल्स? तो आंसर है टेलीफोन। टेलीफोन एंड कैमरा, दे आर वर्किंग ऑन एनालॉग सिस्टम। टेलीफोन में जो हमारा साउंड जाता है दैट इज मेक्स इट ए एनालॉग सिग्नल। बाद में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? डिजिटल में। और वो कन्वर्ट करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? नो, सबको मालूम है, मॉडम। मॉडम क्या करता है? ये एनालॉग सिस्टम को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, क्योंकि कंप्यूटर किसको एक्सेप्ट करता है? हाँ, कंप्यूटर डिजिटल की भाषा को समझता है, एनालॉग की भाषा को नहीं समझता। तो जब भी कोई चीज को हमको कंप्यूटर से ऑपरेट कराना है, उसमें से कुछ काम करवाना है, तो वो सिग्नल को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो याद रखिए, टेलीफोन लाइंस एंड टेलीफोन सिस्टम इज वर्किंग ऑन एनालॉग, दैट इज ऑडियो एंड वीडियो, बोथ आर एनालॉग। Data system is digital and that is working on computers, and anything which works on the computer basis. Okay, तो इस तरह से ये हमने सिग्नल के ये पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसमीटर चैनल। जी, डिजिटल कैमरा फिर डिजिटल डीवीडी प्लेयर भी फिर एनालॉग। डिजिटल कैमरा क्या होता है? डिजिटल कैमरा में जिस समय यहां से फोटो लेंस में जाएगी, लेंस के अंदर जाएगी, वो सिग्नल होगा एनालॉग, और उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा है, वो प्रोसेसर उसको किस में कन्वर्ट करता है? यस,
वो उसको डिजिटाइज करके इलेक्ट्रिकल करंट के वेरिएशंस में करता है और वो इलेक्ट्रिकल करंट के वेरिएशन हमारे चिप में रिकॉर्ड हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। फिर हम उसका चिप निकालते हैं और फोटोग्राफर के पास ले जाते हैं। लेकिन जो हमारा लेंस वाला पुराना कैमरा होता था वो कन्वर्ट नहीं करता था, तो दैट वाज ऑर्डिनरी कैमरा एंड दैट वाज एनालॉग कैमरा। और इसमें एनालॉग के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रोविजन क्या है, देयर इज अ कन्वर्टर। वो कन्वर्टर क्या करता है, एनालॉग को, इसका ये मतलब नहीं कि कैमरा डिजिटल हो गया। जो बेसिक प्रोसेस हमारी है कि फोटो को कैच करना, वो प्रोसेस कौन सी होती है, एनालॉग भी होती है। लेकिन इस कैमरे में जो चिप्स रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। और वो सिग्नल फिर हम कंप्यूटर के सिस्टम से उसमें बहुत तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, कलर्स भर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और आप देखते हैं हम लोग उसके फोटोशॉप में जाके कितने तरह के ऑपरेशन उसमें करते हैं। ये सब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो डिजिटाइज हो गया। ठीक है, एनालॉग रहता तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, एक लेंस लगा के उसको छोटा कर लेते, बड़ा कर लेते थे, बस। ओके, तो ये सिग्नल के बारे में। नाउ दिस कम्स टू ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर, हाँ, एक चीज इसमें हमने और डेफिनेशन लिखनी है। वी आर स्टडीइंग व्हाट आर द बेसिक टर्म्स। तो अगली टर्म जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी नॉइज। नॉइज क्या होता है? नॉइज जनरल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि नॉइज क्या होता है। अगर मैं आपसे एक बात कुछ कह रहा हूं, पीछे बैठे हुए स्टूडेंट को कोई बात बोल रहा हूं और यहाँ बीच में दूसरे स्टूडेंट आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तो उसको मेरी बात क्लियर सुनाई नहीं पड़ेगी और वो बोलेगा बीच में नॉइज। दिस इज नॉइज। इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से यहाँ तक भेजा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एक पर्टिकुलर वोल्टेज वेरिएशन है। बीच में कहीं से एक दूसरी तार आ गई, उसने अपना वोल्टेज वेरिएशन भेजना शुरू कर दिया, तो हमारा जो वेरिएशन था, हमारा जो वेरिएशन ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, ये वेरिएशन यहां से ऐसा हो गया, यहां से ऐसा हो गया, इधर से ऐसे हो गया, यहां पर से शॉर्टकट हो गया, लाइक दिस, इस तरह का बन गया। क्यों? कहीं पे प्लस वोल्टेज आ गई और कहीं पे माइनस वोल्टेज आ गई। जहां प्लस वोल्टेज आ गई वहां ये ऐसा हो गया और जहां माइनस वोल्टेज आ गई वहां ये ऐसा हो गया। अब देखिए, हमने ऐसी वेव भेजी थी ये वाली और ये ऐसे होके हमको पहुंचती। क्यों ऐसे होके पहुंचती है? क्योंकि किसी ने उस पर वोल्टेज और लोड कर दी, वोल्टेज के वेरिएशन, तो वोल्टेज वोल्टेज से ऐड हो जाएगी। एडिशन का सबसे फंडामेंटल रूल क्या है? The two things which are being added should have the same nature. ठीक है, जैसे मास में आप मास को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मास में आप लेंथ को ऐड नहीं कर सकते। तो हम जिस चीज को भेज रहे हैं वो क्या है? वोल्टेज के वेरिएशंस। तो उसको डिस्टर्ब कौन कर सकता है? वोल्टेज के वेरिएशंस। तो वो वोल्टेज के वेरिएशन किसी और सोर्स से आ गए। अब जब वो आ गए तो ये ऐसे आ गए। अगर हमारे ये वाले सिग्नल इसी तरह से जाते रहते तो लास्ट में जाके जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती वो क्या मिलती? जो हमने भेजी। तो यही इंफॉर्मेशन हमको लास्ट में जाकर मिलती, लेकिन ये रास्ते में ऐसा बन गया। अब जो हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या वही मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब एक्चुअली जो हमको आवाज सुनाई पड़ेगी वो आवाज बीच में कट जा रही है, कर 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 हो जा रहा है, कोई दूसरी साउंड आ रही है। ये सब क्यों हो गया? क्योंकि बीच में उसमें ये एक्स्ट्रा वोल्टेज आ गई। ये वही चीज है जो हम बात करते समय बीच में एक दूसरा नॉइज आ जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बाजू में हॉर्न बज रहा है या ठक 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 करता है, ये सब नॉइज। तो हमारी बातचीत की भाषा में वो नॉइज है और कम्युनिकेशन की भाषा में नॉइज क्या होता है? एन एडिशनल सिग्नल। तो सिग्नल को डिस्टर्ब कौन करेगा? सिग्नल करेगा। साउंड को कौन डिस्टर्ब करेगा? साउंड करेगा। अगर हम आपको यहां पर एक पिक्चर दिखा रहे हैं, आप पिक्चर को देख रहे हैं और इधर बाजू में एक दूसरा आदमी बात कर रहा है, आपको डायलॉग से मतलब नहीं, पिक्चर देखने में आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। पर अगर कोई आदमी लाइट जलाता है तो हमको पिक्चर नहीं दिखेगी। क्यों? पिक्चर किस चीज की बनी हुई है? लाइट। उसको कौन डिस्टर्ब करेगा? लाइट।
अगर हम डायलॉग सुन रहे हैं और उसके बीच में दूसरे आदमी ने टॉर्च जला ली तो हमारे डायलॉग में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो बोलने लगा तो यस, तो साउंड को कौन डिस्टर्ब करेगा? साउंड। इसी तरह से वोल्टेज को कौन डिस्टर्ब करेगा? वोल्टेज। सो व्हाट इज ए नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम? द वोल्टेज वेरिएशन सिग्नल्स आर द नॉइज। और अगर ये भी सिग्नल है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? तो डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। वी विल से दीस सिग्नल्स आर अनवांटेड सिग्नल। हम नहीं चाहते उसको। अगर हम उस सिग्नल को नहीं चाहते तो हम उसका नाम क्या दे देते? नॉइज, राइट? तो नॉइज के लिए वन लाइन डेफिनेशन क्या बनी? दीज आर अनवांटेड सिग्नल्स, दीज आर अनवांटेड सिग्नल, ब्रैकेट में वोल्टेज वेरिएशंस which adds up with the required signals, which adds up with the transmitted signal. तो ये जो सिग्नल्स हैं ये कहां पर ऐड होते हैं? तो हमारा आंसर है कि ये तो कहीं पर भी ऐड हो सकते हैं, पर मोस्टली हमने देखा है कि ये यहां पर ऐड होते हैं। चैनल एक बहुत बड़ा रास्ता है, ठीक है? उस रास्ते में ज्यादा चांसेस इसके ऐड होने के हैं, नॉइज। लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि चैनल में ही ये ऐड होंगे, ट्रांसमीटर में नहीं होंगे। हो सकते, अगर हमारे ट्रांसमीटर में कहीं लूज कॉन्टैक्ट है, वहां पर एक सिग्नल आ जाएगा, खड़खड़ खड़खड़ बनाएगा। वैसे ही स्पीकर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर हम यहाँ किसको रेफर करेंगे कि चैनल में जो हमने ऐसे वेव्स भेजी हैं जो दूर तक जा रही है, उसको किसी दूसरी वोल्टेज ने आके डिस्टर्ब कर दिया है, दैट इज नॉइज। ओके, तो बेसिकली नॉइज के लिए क्या याद रखना है? दो शब्द, अनवांटेड, सिग्नल। ठीक है, ये भी सिग्नल है और ये कैसे है? अनवांटेड है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे एंड दैट इज ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर इज a device which converts the signal into such a form so that it has sufficient energy to go through the channel to a long distance. What is a transmitter? It's a device which converts the signals to such a form that it has sufficient energy and the form to go to the long distance. ये उस सिग्नल में इस तरह से उसको पैक करके, तैयार करके, एनर्जी देके भेजता है, राइट? जैसे अगर आपने यहां से जाना है तो आप जा तो सकते हैं, पर अगर आप कैलाश यात्रा में जा रहे हैं तो ऐसे के ऐसे नहीं जा सकते। आपको एक ट्रांसमीटर चाहिए, वो ट्रांसमीटर देखेगा आपकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं, कि आप 50 किलोमीटर चल सकते हैं कि नहीं, फिर वो आपको दवाइयां देगा, फिर गर्म कपड़े देगा, सब कुछ देगा और इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इतनी एनर्जी देगा कि आप वहां जाकर वापस आ जाओ। ठीक है, क्योंकि जिंदा रहना जरूरी है। तो उसी तरह से अगर हमने सिग्नल भेज तो दिया और उधर पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ही यस, तो फिर क्या? इसके लिए हम जिस चीज को यूज करते हैं, जिस डिवाइस को यूज करते हैं, वो क्या चीज है? ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये ट्रांसमीटर उसको एनर्जी देगा और ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जिससे वो दूर तक जा सके और सेफ रहे, दैट इज ट्रांसमीटर। उसके बाद है नेक्स्ट चैनल। ओके, ट्रांसमीटर में एक प्रोसेस होती है। ओके, अब इसके पहले आगे हम ले लेते हैं रिसीवर। यही सीरियल रखते हैं जो बुक का है, रिसीवर। ट्रांसमीटर के बाद रिसीवर। ना ये जो रिसीवर है ये क्या होता है? रिसीवर वैसा ही होता है जैसा ट्रांसमीटर। ये कौन सा काम करता है? ये ट्रांसमीटर से ठीक उल्टा काम करता है, राइट? तो अगर जब आप इसके पास पहुंचेंगे कैलाश यात्रा करके, तो ये आपका सामान सब वापस रखेगा और
आपको वहां से अनपैक करके भेज देगा, या रेलवे स्टेशन में हम उतरते हैं तो वहां से हमको पैक करके घर के लिए भेजेगा। वैसे ही ये रिसीवर होता है। इस रिसीवर का एक और काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो क्या है? वो ये है कि ट्रेन से हजारों पैसेंजर उतरते हैं और वहां पर सामने लेने के लिए बहुत सारे ड्राइवर आते हैं। उस ड्राइवर को अपना सही पैसेंजर चुन के अपने घर में ले जाना है, दूसरे आदमी को नहीं ले जाना है। ये काम किसका है? रिसीवर का। वो रिसीव कर रहा है। तो यहां पर हमारे चारों तरफ यहां पर बहुत सारी वेव्स हैं, अभी भी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन वो इस फ्रीक्वेंसी की है कि हम उसको आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, उसको सेंस नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है जो उसको सेंस कर सकती है, ये सबको मालूम है, ये उसको सेंस कर सकता है। लेकिन अभी ये नहीं बज रहा है। क्यों नहीं बज रहा है? क्योंकि इसने जिसको रिसीव करना है वो वाली वेव नहीं। तो इसके अंदर एक रिसीवर है। तो वो रिसीवर क्या करता है? वेव को रिसीव करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा और उसको जो एनर्जी देने के लिए उसके साथ जो डिवाइस लगाई गई थी, किसने लगाई थी वो डिवाइस? ट्रांसमीटर। कि भाई यहां से अगर हमको चंद्रमा पर जाना है तो उसने हमको रॉकेट में बिठा दिया और वो रॉकेट चंद्रमा पर पहुंच गया। लेकिन जब वो चंद्रमा पर पहुंच गया तो वहां हमको एक आदमी चाहिए जो हमको रॉकेट से उतारेगा, वो रिसीवर है। इसी तरह से सिग्नल के साथ कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। वो मॉडिफिकेशन किसने किए थे? ट्रांसमीटर ने, ताकि उसमें इतनी एनर्जी आ जाए कि वो दूर तक चला जाए और वो दूर तक जाकर जब हमारे स्टेशन पर पहुंचता है तो यहां पर एक रिसीवर डिवाइस मिलती है। वो रिसीवर डिवाइस उसको उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से हटाकर फिर से सिंप्लीफाई कर देती है। सिंप्लीफाई करती है और किस में बदल देती है? फिर से वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है। ये रिसीवर का काम है। तो रिसीवर के दो काम नोट कर लीजिए। रिसीवर डिटेक्ट द रिक्वायर्ड सिग्नल। इसके अंदर एक ट्यूनिंग सर्किट होता है और ट्यूनिंग सर्किट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या करता है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही ट्यून करता है, उसी के सिग्नल को लेता है। ओके, सो रिसीवर के लिए क्या लिखा? रिसीवर डिटेक्ट द रिक्वायर्ड सिग्नल and then simplifies it to simple signals. It is doing the reverse work of transmitter. ओके, तो जब ये चैनल से रिसीव करता है तो ये प्रोसेस क्या है? ट्यूनिंग। ठीक है, ट्यूनिंग करके उसने रिसीव किया। अब उसने जिस हालत में रिसीव किया उस हालत में सिग्नल कैसा है? कॉम्प्लिकेटेड। उस कॉम्प्लिकेटेड को वो क्या कर देता है? सिंप्लीफाई करके वो आगे किसको भेज देगा? ट्रांसड्यूसर को। किसको भेजेगा? ट्रांसड्यूसर को। और ट्रांसड्यूसर किसमें कन्वर्ट कर देगा? इंफॉर्मेशन में। ओके, अब इसके बाद अगली चीज लिखिए, अटेन्युएशन। ये शब्द हम बार बार यूज करेंगे। व्हाट डज इट मीन? अटेन्युएशन। अटेन्युएशन, इसका शब्द का सिर्फ मीनिंग ही आपको जानना जरूरी है। अटेन्युएशन मीन्स बिकमिंग वीक, कमजोर हो जाना, वीक हो जाना, दैट इज अटेन्युएशन। हमने जब यहां से ट्रांसमीटर से वेव्स को भेजा तो ये वेव्स ऐसे थी। जब ये पहुंचते 100 किलोमीटर दूर पहुंच गई, 500 किलोमीटर दूर पहुंच गई, तो ये वेव ऐसे हो गई। क्या इसका कम होते जा रहा है? एम्पलीट्यूड इसका कम होते जा रहा है। एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है, इसकी एनर्जी कम होते जा रही है। ये जो प्रोसेस है कि इसकी एनर्जी कम होते जा रही है, इसको हम बोलते हैं अटेन्युएशन। राइट? सो लिख लीजिए, अटेन्युएशन इज लॉस ऑफ एनर्जी
during motion of the wave. Attenuation is loss of energy during motion of the wave. अच्छा, अब अटेनुएशन के साथ हम एडजेक्टिव लगाया करेंगे. हाई अटेनुएशन, लो अटेनुएशन. हाई अटेनुएशन का मतलब क्या है? ज्यादा वीक हो जाना, राइट? और लो अटेनुएशन कम. तो कौन सी चीज अच्छी है? लो अटेनुएशन. तो सिग्नल ऐसा जाना चाहिए कि उसमें अटेनुएशन कम से कम होना चाहिए. तो जो चीजें ज्यादा अटेनुएट करती हैं उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, राइट? कि हमको एक तार में से सिग्नल भेजना है, कैसी तार यूज करें कि अटेनुएशन कम हो, वैसा हम करेंगे. इस तरह से हम हमेशा ये ढूंढते रहेंगे कि अटेनुएशन कम से कम होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट एम्प्लीफिकेशन. नेक्स्ट टर्म वी विल यूज इज एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, ये आपने पिछले चैप्टर में ही किया है, जस्ट वी ऑल नो वेरी वेल. और इसके लिए जो एनर्जी लगती है वो कहां से मिलती है? उसको बैटरी से मिलती है. अच्छा, नेक्स्ट इज रेंज. रेंज ये आपने प्रोजेक्टाइल में किया हुआ है. यहां से सिग्नल भेजा, जितनी दूर जाकर गिरेगा दैट इज रेंज. सो रेंज इज द डिस्टेंस अप टू विच signals can be received in good strength. Up to which the distance can be distance up to which the signal can be received in good strength. ये उसका रेंज है. जैसे हम लोग बात करते हैं कि बिलासपुर का जो रेडियो स्टेशन है उसका रेंज कितना है, तो उसका रेंज 40 to 50 किलोमीटर है. उसके अंदर वो क्लियर सुनाई पड़ता है, उसके बाद लीक हो जाता है. दिल्ली का जो रेडियो स्टेशन है दैट गोज अप टू 100 किलोमीटर और इट मे बी 200 किलोमीटर. तो कितनी पावर का ट्रांसमीटर है उस पर डिपेंड करता है कि वो रेंज कितना ज्यादा है. अच्छा, नेक्स्ट लिखिए मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन the original low frequency message cannot be transmitted to long distance. Cannot be transmitted to long distance. Hence it is superposed over high frequency, high energy waves. It is superposed over high energy, high frequency waves. This process of combining the two, ब्रैकेट में लिखिए सिग्नल एंड कैरियर वेव्स. is called modulation. तो मॉड्यूलेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द टू. किस दो को कंबाइन करना है? सिग्नल एंड कैरियर. जैसे हमने यहां से जाना है लॉन्ग डिस्टेंस, तो स्टेशन पे एक प्रोसेस होती है कि हम ट्रेन पर चढ़ते हैं. ये जो ट्रेन पर चढ़ना है ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन. ठीक है, उसके बाद हम ट्रेन पैसेंजर बन गए, वी विल गो विद द स्पीड ऑफ ट्रेन. ठीक है, इसी तरह से अगर हम एरोप्लेन पे चढ़ गए, वो वाला मॉड्यूलेशन किया, वी विल गो विद द स्पीड ऑफ एरोप्लेन. लेकिन उससे हमारी आइडेंटिटी नहीं बदलती. हम तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं. बाद में जाके जब हम डीमॉड्यूलेट होंगे
यानी एरोप्लेन से उतर जाएंगे, पैसेंजर से उतर जाएंगे, तो उसके बाद हम ट्रेन नहीं है, हम अपना अपने पर्सन है। जब तक हम ट्रेन में थे तब तक हम पैसेंजर थे, हम ट्रेन थे, हमारी स्पीड ट्रेन की स्पीड। लेकिन उसके बाद हम क्या हो गए, डीमॉड्यूलेट, ट्रेन से उतर गए, दैट इज डीमॉड्यूलेशन। तो नेक्स्ट लिखिए डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन इज separating message signal from the carrier waves. Separating message signal from carrier waves. This is demodulation. और ये किसका उल्टा होता है, modulation. It is a reverse process of modulation. उसके बाद बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बैंडविड्थ पहले आपने क्या किया था, मॉड्यूलेशन, अभी क्या कर रहे हैं, बैंडविड्थ। A signal is a combination of many frequencies. Is a combination of many frequencies or a range of or it is spread over a range of frequencies. It is spread over a range of frequencies. This range of frequency is called bandwidth. This range of frequency is called bandwidth. Okay. Every signal and every equipment has a bandwidth in which it operates. ठीक है, तो ये वो फ्रीक्वेंसी का रेंज है। बैंडविड्थ किसकी प्रॉपर्टी होती है, तो बैंडविड्थ सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है, बैंडविड्थ ट्रांसमीटर की प्रॉपर्टी होती है, बैंडविड्थ चैनल की प्रॉपर्टी होती है, बैंडविड्थ रिसीवर की प्रॉपर्टी होती है, बैंडविड्थ लास्ट के स्पीकर की प्रॉपर्टी होती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब मेरा गला बोलता है तो उसमें कम से कम 300 फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलता है, ज्यादा से ज्यादा 600 का निकलता है। तो बैंडविड्थ कितनी है, 300 to 600, 300 बैंडविड्थ गले की है। ये सिग्नल है हमारे, इसमें ये जब साउंड को लेता है तो ये साउंड को लेता है सिर्फ 400 से लेके 500 फ्रीक्वेंसी तक, या 400 से 600 फ्रीक्वेंसी तक। 4 से 6 इसलिए लेता है कि मोस्टली आदमियों की आवाज 500 के आसपास होती है। तो इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 200। मेरे गले की कितनी है, 300। मैं 300 से बोलता हूं, ये 200 रिसीव करता है उसमें से, और बाकी आसपास को रिसीव नहीं करता। इसके बाद ये आवाज स्पीकर में जाती है। जब स्पीकर में जाती है, दैट इज अगेन सेट फॉर 100। अब क्या होगा, वो 450 से 550 तक का साउंड में ही रिसीव कर सकता है, वो उसकी बैंडविड्थ है। तो वो उतना सा सिग्नल रिसीव करेगा और वो साउंड हमको सुनाई पड़ेगा। हम बोलते हैं कि आदमी जब सामने बोलता है तो इसकी आवाज अलग आती है, और फोन में लगाते हैं तो इसकी आवाज अलग आती है। क्यों अलग आ रही है, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी दोनों कर गई, मिडिल फ्रीक्वेंसी पहुंच गई। यहां से जो हमने फ्रीक्वेंसी भेजी थी उसकी विड्थ 300 थी, और वहां जो हमारे कान में आती है उसकी विड्थ 100 है। अब ये बीच में कौन काटता है,
ये अलग अलग मशीन पे डिपेंड करता है। मोस्टली चैनल पे काटते हैं क्योंकि चैनल में मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर हमारे शहर में 20,000 टेलीफोन सर्व करने हैं और सबको अलग अलग टेलीफोन नंबर दिया है, सबको अलग अलग चैनल दिया है। तो उसको जितनी बैंडविड्थ दी जाती है कि आपको 10⁻⁶ बैंडविड्थ मिली, उसको आप 10⁻² लोगों में बांट दीजिए, सॉरी 2 नहीं 10⁴ लोगों में बांटिए, 10,000 लोगों में, तो एक के हिस्से कितनी आई 10⁻², टोटल कितना मिला उसको 10⁻⁶। ये बैंडविड्थ उसको मिली, चैनल विड्थ, और उसको कितने लोगों को बांटनी है 10⁻⁴ लोगों को बांटना है। तो एक टेलीफोन के हिस्से में कितनी आई 10⁻², तो वो बेचारा वही करता है, हर टेलीफोन के साथ कितनी बैंडविड्थ देता है 10⁻²। अब हम इस पर म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक में जब बांसुरी बजती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1000 और जब तबला बजता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 40। दोनों हमको सुनने हैं, तो इसकी बैंडविड्थ हमको कितनी चाहिए 40 से लेके 1000 बैंडविड्थ चाहिए, और है कितनी 100 200। तो ये क्या करता है, ना तो हमको इसमें तबला सुरीला सुनाई पड़ता है, ना बांसुरी ढंग से सुनाई पड़ती है। ये इसलिए क्योंकि इसकी बैंडविड्थ क्या है कम। अगर इसी चीज को हम लोग एक अच्छे साउंड सिस्टम में लगा के सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा सुनाई पड़ता है। लाइव देखते हैं तब तो बहुत ही अच्छा सुनाई पड़ता है, क्योंकि हमारे कान की बैंडविड्थ जो है यस दैट इज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, दैट इज बैंडविड्थ ऑफ द ईयर। तो अभी यहां ये समझाने का ये मतलब है कि बैंडविड्थ सिर्फ एक चैनल की, सिर्फ एक सिग्नल की नहीं होती, हर चीज के साथ ये वाली टर्म एसोसिएट है। तो अगर हमने एक बहुत अच्छा ट्रांसमीटर लिया जो ट्रांसमीटर 1000 बैंडविड्थ ट्रांसमिट करता है, लेकिन सामने चैनल ऐसा पड़ गया जो सिर्फ 200 अलाउ करता है, तो वो कितना अलाउ करेगा 200, तो हमारी मेहनत बेकार हो गई, हमको उधर मिलेगा कितना 200। तो जब हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं तो जो बैंडविड्थ हम शुरू करते हैं, जो हमको मिनिमम बैंडविड्थ चाहिए वो पूरे सिस्टम की चाहिए। तब हम एक ऑर्केस्ट्रा के सामने हमने उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजनी है टीवी पर, तो उसमें ये जितने पार्ट्स हैं सबकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए जितनी उस ऑर्केस्ट्रा ने बैंडविड्थ यूज की। अगर उसने 10,000 बैंडविड्थ यूज की है इतनी फ्रीक्वेंसी, तो सबकी सब फ्रीक्वेंसी का हमको माइक्रोफोन चाहिए, उतनी ही फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर चाहिए, उतने ही बैंडविड्थ का हमको चैनल चाहिए, उतने ही बैंडविड्थ का हमको स्पीकर चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट, और उतने ही बैंडविड्थ का हमको एम्पलीफायर चाहिए। उस एम्पलीफायर में सभी फ्रीक्वेंसीज को हाई करने की पावर होनी चाहिए, और उतने ही बैंडविड्थ का हमको ट्यूनर चाहिए, जो कि नहीं होता। ट्यूनर हमेशा क्या करता है, एक फ्रीक्वेंसी को करंट को हाई बनाता है, बाकी फ्रीक्वेंसीज को कम कर देता है। तो हमारे पास उसके भी तरीके होते हैं, हम हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं तो बैंडविड्थ बढ़ जाती है। दिस इज बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो अगर इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो ये एक रेंज ही है बैंडविड्थ, उससे ज्यादा ये बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब यहां से जो चैनल जितनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करता है उसके बेसिस पर हम लोग उसका नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं, गवर्नमेंट ने बैंडविड्थ को अलाउ किया हुआ है। कैसे अलाउ किया हुआ है कि जितने हमारे आसपास रेडियो चलते हैं, AM रेडियो, उसके लिए उन्होंने बोला है कि 540 से 1600 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। ये बैंडविड्थ गवर्नमेंट देती है, जो आप सुनते हैं 2G 3G, ये सब बैंडविड्थ है कि किस बैंड में ऑपरेट करना है। बैंड मतलब एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से जो FM ब्रॉडकास्ट होता है, FM ब्रॉडकास्ट 100 मेगाहर्ट्ज पर, मेगा मतलब 10⁶। FM में इतना हाई फ्रीक्वेंसी यूज होता है 88 to 108 मेगाहर्ट्ज, तो 20 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ उसमें यूज होती है। इसी तरह से टेलीविजन,
टेलीविजन पर आप ये देखेंगे, ये एक चार्ट बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में। इसमें से ही मैं डाटा आपको बता रहा हूं। एंड दिस सेज टेलीविजन पर हम दो तरह से यूज करते हैं, एक अपलोड के लिए और एक डाउनलोड के लिए। अपलोड के लिए दो चीजें यूज करते हैं, एक वीडियो और एक ऑडियो। उसके लिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है 54 टू 72, ये है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज, और वीडियो के लिए 76 टू 88 मेगाहर्ट्ज, ये ऑडियो और वीडियो। इसी तरह से यूएचएफ बैंड हम यूज करते हैं सैटेलाइट, जो हमने डिश एंटीना लगाया हुआ है उसके साथ। डिश एंटीना के साथ जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं उसकी बैंडविड्थ होती है 174 टू 216 मेगाहर्ट्ज। तो 74 टू 216 ये कितनी हो गई, 26 प्लस 16 42 मेगाहर्ट्ज। ओके, ये ऑडियो के लिए, और इसी तरह से वीडियो के लिए होती है 420 टू 890 मेगाहर्ट्ज। इस तरह से ये बढ़ते जाती हैं। ये जो हमारे मोबाइल काम करते हैं, मोबाइल के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज है 896 टू 900 मेगाहर्ट्ज। ये इस मोबाइल से बेस स्टेशन जो सिग्नल जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और बेस स्टेशन से इस मोबाइल में जो सिग्नल आएगा दैट विल बी अगेन 825 मेगाहर्ट्ज। ओके, सैटेलाइट की जो कम्युनिकेशन होती है एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट, या सैटेलाइट से डाउन अर्थ में आने के लिए, अर्थ से अपलोड होने के लिए, ये फ्रीक्वेंसीज और ज्यादा होती है, ये गीगा रेंज में, गीगाहर्ट्ज। तो 5.925 से 6.425 गीगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी किसके लिए यूज करते हैं, अपलिंक के लिए, और डाउनलिंक के लिए 3.7 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज। दोनों फ्रीक्वेंसीज अलग अलग रखी जाती है। ये हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे ताकि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। इस तरह से गीगाहर्ट्ज सैटेलाइट के लिए, उससे कम मोबाइल के लिए, उससे कम टीवी के लिए, और उससे कम रेडियो के लिए। इस तरह से फ्रीक्वेंसीज का एक रेंज बना है, और इसको आपको अगर आप पूरा वर्ड टू वर्ड याद नहीं करते हैं तो भी जस्ट एक आइडिया आप रख सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी फ्रीक्वेंसी में काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वेव प्रोपिगेशन अगली क्लास में करेंगे। तो अभी जो हमने किया है दैट इज व्हाट इज मीन बाय ए बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ की जरूरत क्यों पड़ती है? बैंडविड्थ की हमको इसलिए जरूरत पड़ती है कि बहुत सारे सिग्नल हम एक साथ मिलाकर भेज सके, जैसे ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक। तो उसमें हमको तबला भी चाहिए 40 हर्ट्ज वाला, और बांसुरी भी चाहिए जो 1000, 2000, 12,000। ठीक है, पूरा मिला के एक बैंडविड्थ बनती है।